سیدنا و نبی و شفیع ذنوبنا وابن القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لا يبلغ منه القائلون ولا يبصر العمى ولا عدون ولا يؤدي الحق المجتهدون الذي لا يدرك الموت الحمم ولا ينال الغوث الفتن الذي ليس لصفة الحق المحدود ولا نعت الموجود ولا وقت الممدود ولا أجل الممدود فتلقى الغالب بقدرته ونشر رياحه برحمته بنور اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحق فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقوله الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تمام حمد و ستائش اس معبود کے لیے ہے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے، جو علی کل شیء قدیر، جو وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود کہ جو اندھیرے میں بھی نور کے ذریعے ہدایت کرتا ہے. وہ پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ. جس وقت تیار ہو، آمادہ ہو اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح کو، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. لیکن کنیزہ نظیرہ، پروردگار عالم اس وقت اپنے بندے کو ہدایت کرتا ہے جب اس کے اوپر اعتقاد ہو، جب دل صاف ہو، روح پاکیزہ و طاہر ہو. اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ابلیس سے معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ابلیس سے معاملہ ہو گیا تو پروردگار عالم کہہ دے گا فہبط منہا، نکل جاؤ میرے دربار سے. شیطان کو اسی لیے نکال دیا تھا کیونکہ وہ تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے آخر پروردگار عالم نے شیطان کو اپنے دربار سے نکالا کیوں؟ تو قرآن میں یہ ہے واقعہ کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا تو یہ حکم کر دیا کہ سب کے سب کیا ہو جاؤ، سجدے میں گر جاؤ. سب نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن سوائے ابلیس. تو پروردگار عالم نے کیا کہا فَهْبِطْ مِنْهَا، یعنی نکل جاؤ میرے درباروں سے، میرے دربار سے تو نکل جاؤ. آپ کو معلوم ہے پروردگار عالم تو کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اتنی سے غلطی کرنے پہ بھی وہ سزا نہیں دیتا اتنی جلدی، لیکن صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیسے پروردگار عالم اپنے بندے کو اتنی بڑی سزا دے سکتا ہے کہ میرے دربار سے نکل جائے؟ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے آیت کی کیا تلاوت کی؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے نفخت فیہ من روحی، کہ جس وقت میں پھونکتوں اپنی روح کو، یعنی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم حضرت آدم کا سجدہ کرنے کو نہیں دے رہا ہوں، بلکہ کیا کہہ رہا ہے جس وقت میں نے اپنی روح کو پھونک دوں
तो तुम सबके सब सजदे में गिर जाना। यानी रूह का सजदा करने के लिए हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि ये है कि हजरत आदम का जो पुतला है वो हजारों साल पहले ही बन चुका था, लेकिन सजदे का हुक्म नहीं हुआ था। लोग आते थे जाते थे, यानी वहाँ पे फरिश्ते जो थे वो देख रहे थे कि हजरत आदम का ही पुतला है, लेकिन सजदे का हुक्म नहीं हुआ था। हुक्म कब हुआ? जब परवरदिगार आलम ने कहा कि जब मैं इसके अंदर अपनी रूह को फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। अब सवाल ये पैदा होता है, अपनी रूह कहते किसी, रूह किस चीज का नाम है, रूह किस बला का नाम है? आइए जमाने पैगंबर में उनसे सवाल करते हैं। एक शख्स जब रसूल खुदा की खिदमत में आता है, या रसूल अल्लाह जब रसूल खुदा की वो खिदमत में आता है तो कहता है, या रसूल अल्लाह आखिर ये रूह किस चीज का नाम है? क्या कोई खास है, कोई खास चीज है, नमाज का, रोजे का, कुछ ऐसा हुक्म है? कहा नहीं। कहा क्या है फिर? तो हुक्म परवरदिगार आया कि ए मेरे हबीब कह दो कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि रूह जो है वो परवरदिगार आलम का हुक्म है, परवरदिगार आलम का अम्र है। यानी मालूम हुआ कि इब्लीस ने इनकार हजरत आदम का नहीं किया था, बल्कि इनकार अम्र का किया था, इनकार सजदे का नहीं किया था, बल्कि परवरदिगार आलम के हुक्म का किया था। यानी जिसने एक अम्र का इनकार करके ता कयामत लानती हो गया, उसका क्या हश्र होगा जो तमाम के तमाम उलिल अम्र का इनकार करते हुए नजर आते हैं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाली मोहम्मद। तो नहीं जाने जरा, अभी यहाँ पे शैतान का काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो उसने शुरुआत की थी। अब वो क्या कहता है, परवरदिगार आलम मैंने हजारों साल के एक सजदे अंजाम दिए, एक सजदे अदा किए, क्या तू उसका अजर सिर्फ ये देगा? तो परवरदिगार आलम के दरबार से तो कोई खाली नहीं गया है। अब परवरदिगार आलम कहता है, जा तुझे कयामत तक के लिए मोहलत देती है। अब जब उसे मोहलत मिली है तो शैतान क्या कहता है? इब्लीस कहता है, जाते जाते ये खुदा से कहते हुए जा रहा है कि परवरदिगार आलम मैं तेरे महबूब बंदों को मैं सिरातुल मुस्तकीम से हटाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ने से रोकूंगा, हज अदा करने से रोकूंगा, ज़कात ना देने से रोकूंगा, खुम्स अदा करने से रोकूंगा, बल्कि ये कहता है कि परवरदिगार आलम मैं सिरातुल मुस्तकीम पर बैठ कर तेरे बंदों को बहकाऊंगा। आइए ज़माने रसूल में थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं कि ये सिरातुल मुस्तकीम कहते किसे हैं। अब एक शख्स रसूल की खिदमत में आता है, कहता है, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए सिरातुल मुस्तकीम क्या है? तो क्या उसने कहा, क्या हज को कहते हैं? कहा नहीं। कहा नमाज को कहते हैं? कहा नहीं। अभी ये जवाब दे ही रहे थे कि मस्जिद के दर से हजरत अली वहाँ से नजर आए। जैसे ही रसूल को नजर आए, बस रसूल खुदा ने अपने दाएं हाथ की उंगली इमाम अली की तरफ किया, कहा हाजा सिरातुल मुस्तकीम, ये सिरातुल मुस्तकीम है। यानी मालूम हुआ कि जो शैतान है वो ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं रोकता है, बल्कि अलीउन वलीउल्लाह से, इस हुक्म से रोकता है। और सिर्फ इमाम अली की विलायत से नहीं रोकता है, सिर्फ इमाम अली की विलायत कबूल करने से नहीं रोकता है, बल्कि इमाम अली के बाद आने वाले 11 और इमाम हैं कि जिनकी विलायत से वो इब्लीस से रोकता है। और इस वजह से रोकता है क्योंकि उनका हदफ एक है, उनकी रफ्तार एक है, उनका मकसद एक है, उनकी गुफ्तार एक है, उनकी रफ्तार एक है। इसीलिए तो रसूल ने कहा है कि अव्वलोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, कि मेरा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है। या जुमलों को तब्दील कर ये कह दिया जाए कि हम गुल के गुल मोहम्मद है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाली मोहम्मद। कहीं जाने जरा एक वाक़या आपके सामने पेश करती चलूं।
कि ज़माने इमाम हसन का ज़माना है। शैतान तो हर दौर में रहा है। जब इमाम हसन का दौर आता है तो इमाम हसन जो है वो अपने बाग में, यहूदी के बाग में काम करते हुए नजर आए थे। जब फकीर शाम का, किसका? फकीर शाम का जब वहाँ से गुजर होता है, जब इमाम को देखता है तो दीवार की आड़ से खड़े होकर जब इमाम को देखता है कि इमाम काम कर रहे हैं बाग में, तो क्या कहता है? ए हसन, तेरा बाबा तो सलूनी का दावा किया करता था, क्या तू भी सलूनी का दावा किया करता है? अब जब इमाम ने ये जुमला सुना, इमाम ने अपनी निगाह को भी ऊपर उठाना गवारा नहीं समझा। इमाम ने अपनी निगाहों को भी उसकी तरफ करना गवारा नहीं सोचा। इमाम की निगाहें नीचे हैं। कहते हैं, ए जाहिल, हमारे चेहरे बदला करते हैं, हमारे दावे नहीं बदला करते हैं। अब जब उसने सुना तो कहता है कि क्या मैं आपसे कोई सवाल कर सकता हूँ? कहा, पूछ, जो पूछना है पूछ ले। अब फकीर शाम को देखे सवाल, वो जो है कहता है कि अब इनसे सवाल करूँ तो क्या करूँ? अगर जमीन के बारे में पूछूंगा तो वो भी बता देंगे, आसमान के बारे में पूछूंगा तो ये भी बता देंगे। तो जाहिल जो होता है ना, वो अपने जवाब में ही जाहिल नहीं होता, बल्कि उसके सवालों में भी जहालत होती है। अब जब सवाल उसने पूछा तो क्या पूछा? कहा, ए हसन, जरा ये बताओ, ये जो खजूर का पेड़ है इस पे कितनी खजूरें हैं? अब नीचे से खड़ा कोई शख्स ये नहीं बता सकता है कि इस पे कितनी खजूर है। अब इमाम की निगाहें नीचे, इमाम नीचे ही है, काम में लगे हुए हैं अपने। इमाम ने बिना सर उठाए बता दिया कि 3313 खजूरें हैं। अब जब उसने सुना, कहा, तुम क्या सोचते हो कि मैं इसे गिनवाऊंगा? नहीं, हाँ मैं गिनवाऊंगा। हुक्म दिया अपने गुलामों को, कहा कि मैं इसे, जितनी भी खजूरें हैं इस पेड़ पर, सब नीचे उतारो और गिनो कि क्या वाकई 3313 ही खजूरें हैं। अब जब उसने नीचे उतार के गिनवाना शुरू किया तो क्या देखता है? सब कहते हैं आके अपने उसके कान में कि 3 सलवार पढ़ती है। अब उस फकीर शाम ने इमाम हसन से कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं इन खजूरों को गिनवाऊंगा नहीं? अब उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया, कहा, खजूरें उतारो और सारी खजूरों को गिनना शुरू करो। क्या वाकईन 3313 ही खजूरें हैं इसमें? अब जब सब ने गिनना शुरू किया, अब जो फकीर शाम था वो परेशान टहल रहा था। इमाम के चेहरे पे तबस्सुम थी, या ये कहा जाए खिलाफत परेशान थी, इमामत मुतमईन थी। अब जब उसने गिनवाना शुरू किया तो उसके गुलामों ने धीरे से आगे कान में कहा, हुजूर 3313 ही खजूरें हैं। अब जब उसने सुना, कहा, जरा एक घटाओ एक बढ़ाओ, एक बढ़ाओ एक घटाओ, जरा कहीं से तो कुछ करो। कहा, हुजूर ये भी करके देख चुका, कम करता हूँ तो कम होती नहीं है, बढ़ाता हूँ तो बढ़ती नहीं है। अब जब उसने सुना, अब उसने धीरे से अपने घोड़े को पकड़ा। अब जब वो चढ़ने लगा, चढ़ के जाने लगा, तो मेरा मौला कहता है, ऐ रुक जा, तूने पूछा मैंने बताया, तेरा सवाल था मेरा जवाब था, जरा ये तो बताता जा कि कौन जीता, मैं जीता या तू जीता? कहा, मैं ये नहीं बता सकता। कहा, क्यों? कहा, तुम हाशमी वाले गैब जानते हो, तेरा नाना भी जानता था, तेरा बाबा भी जानता था, अब तू भी जानता है। कहा, देख, मैंने ये गैब से नहीं बताया है, हम हाशमी वालों के लहजों में तो कुन हुआ करता है, हम जो कह देते हैं वो हो जाया करती है, हम तो मुख्तारे कुन हुआ करते हैं। दुरूद पढ़िए।
اہل بیت ہیں کہ جن کی اگر ہم فضیلت لکھتے رہے نا، ان کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، بے شک بے شک، کیونکہ شیطان تو ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں لوگوں کو بھڑکایا، ان کو صراط المستقیم سے ہٹایا ہے۔ شیطان نے کبھی بھی اپنے کام سے ہاتھ نہیں موڑا ہے، وہ اپنے کام کو کرتا رہا ہے۔ دیکھیے کرے جانے ذرا، شیطان نے کچھ لوگوں پر کربلا میں بھی وسوسہ کیا تھا، کچھ لوگوں پر، لیکن امام کی تبلیغیں وہ تھی نا کہ جو جنت اور جہنم کو دیکھنے لگے تھے آنکھوں سے۔ جب امام حسین کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا تو رات بھر کی بات کے بعد جناب حر بہت پریشان ہوئے۔ جب جناب حر بہت پریشان ہوئے نا تو ایک مرتبہ امام حسین کی سمت آگے بڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ جب امام حسین کی طرف آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کا بیٹا جو نوجوان تھا کہتا ہے بابا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں ایک طرف دوزخ کو دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں، اور میں اس جنت کی طرف جا رہا ہوں جس طرف کامیابی ہے۔ کہا بابا اکیلے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ اب جناب حر اپنے فرزند کو لے کر امام حسین کی طرف جاتے ہیں۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ حر آ رہے ہیں تو کہتے ہیں عباس جاؤ استقبال کے لیے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ کنی جانے ذرا، یہ وہی حر ہیں کہ جب امام سے مرنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ جب جناب حر نے اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے نا مقتل کی طرف جانے کے لیے، اور جب جناب حر کے بیٹے نے شجاعت کے ساتھ بہت ہی شجاعانہ جنگی اور جنگ کرتے کرتے جب وہ مقتل کی سرزمین پر گرا ہے تو آواز دیتا ہے، کہتا ہے بابا ہائے میں گر گیا، بابا میں گھوڑے سے گر گیا۔ تو نہیں جانے ذرا، جب جناب حر کے پیر ڈگمگانے لگے، وہ گرتے ہوئے جب مقتل کی طرف جاتے ہیں نا کیا دیکھتے ہیں؟ ارے امام وہاں پہلے سے موجود ہے۔ ارے جب حر نے یہ دیکھا ہے نا کہتے ہیں اے امام یہ غلام کا بیٹا ہے۔ کہا اے حر ابھی کیسے تو سنبھالے گا، جوان بیٹا ہے، تو ضعیف ہے، جوان بیٹے کا لاش نہ ارے ضعیف باپ سے نہیں اٹھ سکتا ہے، ہٹ جاؤ میں تیرے بیٹے کو لے کے جاؤں گا۔ کنیزان زہرا ایسا روئیے کہ جیسے جناب زہرا روتی ہے، کیسے ارے آوازوں کے ساتھ روتی ہے۔ ہاں کنیزان زہرا، ارے یہ وہ دن تھا کہ جب جناب حر کے بیٹے کی لاش کو امام حسین لے کے گئے تھے، لیکن جب ظہر کا وقت ہوتا ہے نا تو ایک باپ کا بیٹا اور گھوڑے سے گرا تھا اور یہ آواز ہی تھی بابا میں گھوڑے سے گر گیا، بابا المدد۔ کنیزان زہرا جب میرا مولا چلا ہے نا مقتل کی طرف، اٹھتا ہے گرتا ہے اٹھتا ہے، مولا بڑی مشکل سے ارے گھٹنیوں چل کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچے ہیں۔ ارے جب علی اکبر نے دیکھا، کنیزان زہرا روایتوں میں ملتا ہے جب علی اکبر نے دیکھا کہ باپ کی داڑھیوں پہ بھی مٹی ہے، سروں پہ بھی مٹی ہے، کہتے ہیں بابا بڑی مشکل سے آئے ہیں۔ کنیزان زہرا اگر لیلا کا درد دیکھنا ہے نا تو اپنے دل سے دیکھیے، کیونکہ آپ بھی تو
जवान की माँ है, अगर बहन सुहरा का दर्द देखना है तो एक मर्तबा बहन की निगाहों से देखिए। खुदा सलामत रखे मेरे भाइयों को। हाँ कनीज़ा ने ज़हरा, हाँ कनीज़ा ने ज़हरा। अरे इमाम हुसैन अरे जब पहुंचे हैं ना जनाब अली अकबर, अरे जनाब अली अकबर अपने हाथों से कभी दाढ़ियों की मिट्टियों को साफ करते हैं, कभी गालों की मिट्टियों को साफ करते हैं, कभी बालों की मिट्टियों को साफ करते हैं। कहा ए बाबा मुझे लगता है आप गिरते हुए आए हैं। जब मेरे मौला ने सुना कहा बेटा मैं साहिब औलाद हूँ, मैं जवान बेटे का दर्द समझता हूँ। कनीज़ा ने ज़हरा अरे मेरे मौला ने कहा बेटा तूने सीने पे हाथ क्यों रखा है? अरे जनाब अली अकबर कहते हैं ए बाबा अरे लईम ने ये कह के मेरे सीने पे बर्छी मारी है। मैंने सुना है तेरा बाबा बड़ा साबिर है, ये कह के उसने बर्छी तोड़ दी है। हाँ रिवायतों में मिलता है मेरे मौला ने हाथ हटाया, देखा गहरा सच में एक मतलब बर्छी पे हाथ डालते देखते हैं, महसूस करते हैं। अरे जनाब अली अकबर कांप रहे हैं। अरे जब ये मंजर देखा फौरन हाथ हटा लेते हैं, फिर कहते हैं बाबा निकालिए ना बड़ा दर्द हो रहा है। अरे जब जवान बेटा अपने बाप से कहे बाबा बड़ी तकलीफ है, जरा बाप के दिल से पूछिए अरे बाप के दिल पे क्या गुजरती है। हाँ कनीज़ा ने ज़हरा, अरे कनीज़ा ने ज़हरा मेरे मौला ने दोबारा हाथ रखा। जब तक ये खींचने की कोशिश की है ना तो देखा महसूस किया अकबर कांप रहे हैं, अकबर कांप रहे हैं। क्या देखा एक तरफ नाना नजर आ रहे हैं, एक तरफ बाबा नजर आ रहे हैं, एक तरफ माँ सैयदा नजर आ रही है, इमाम हसन नजर आ रहे हैं। अरे जब ये मंजर देखा फिर से कहा डाल लिया हाथों पे। हाँ कनीज़ा ने ज़हरा दोबारा हाथों को रखा। अरे अली अकबर के कलेजे पर जब खींचने की कोशिश करते हैं ना महसूस होता है अकबर दर्द से कांप रहे हैं। कनीज़ा ने ज़हरा अरे जनाब अली अकबर अपने हाथों को बड़ी ही मेहनत से बाबा के सर पे रखते हैं, कहते हैं